So welcome dear students. Let us start or continue with the partial differential equation. Now we are going to study the partial differential equation, linear homogeneous partial differential equation of nth order constant coefficients. So the equation which has been given to me, please see the board. A0 into da by n z on da by xn plus a1 into da by n z da by x n minus 1 into da by y. What this is? Gradually differentiation with respect to x is decreasing and differentiation with respect to y is increasing, is equal to f of xy is called homogeneous linear partial differential equation with nth order and with constant coefficients. See carefully, the thing which I want to narrate is this is decreasing and this is increasing gradually. Okay? This is decreasing and y is increasing gradually. Understood? So this has to be considered. Just to say, let dabba by dabba x equal to capital D and dabba by dabba y equal to capital D dash. The equation would be, माइंड क्लियर ये कर लेना कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला है एंड ये होमोजीनियस इसलिए है बिकॉज ये nth डेरिवेटिव है हर बार, ठीक है ना. सो सेम डेरिवेटिव है इसीलिए वो होमोजीनियस है. ठीक, अगेन मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ. dabba z by dabba x equal to capital D, dabba by dabba y equal to D dash, then the given equation would be, ध्यान से देखो, a0 d का पावर n d का पावर n d का पावर n माइनस 1 d डैश d का पावर n माइनस 2 d डैश का स्क्वायर डॉट 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 सो ऑन a0 d का पावर n a1 d का पावर n माइनस 1 d डैश a2 d का पावर n माइनस 2 d डैश का स्क्वायर प्लस डॉट 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 an d डैश का पावर n d डैश जो भी है n ऑपरेटिंग ऑन z इक्वल टू f of xy. This can be summarized as these are nothing but the functions of d and d dash. Therefore, f of d dash operating on z equal to f of xy. This is called as partial differential equation of x and y. यानी किस में है? x and y में है. Of z, where z is f of xy. Now, इसमें भी वही चीजें होंगी जो हम पहले बार देखा करते थे. जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका इट कंसिस्ट ऑफ CF एंड PI. ये दोनों चीजें वहां पर होंगी. तो लेट अस सी व्हाट CF इज. ठीक है, कंसिडर द गिवन नॉर्मल वे से जो हम पिछली बार करते थे. कंसिडर करो RHS की 0 है एंड देन वी विल मूव ऑन. Let us consider that the RHS is 0 and that means f of xy is 0, that means this is absent. So that means the given equation would be a0 into d ka power n a1 into d ka power n minus 1 plus an dot 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 an into d ka power n operating on z equal to 0. If it is 0, then just for the sake put d equal to m and d dash equal to 1. Understood? Put d equal to m and d dash equal to 1. Depending upon the situation, the equation would be, see, a0 m square plus a1 m plus a2 equal to 0. Why this is, they are considering that
a0 m square a1 m a2 equal to 0. For the instant, we have considered that this order to be second order differential equation. समझे ना? ये क्या है? 2. ये हम कंसिडर कर रहे हैं just because of that a0 m square. This is the case. ठीक. Now we are going to solve this auxiliary equation. अब how we are going to solve this auxiliary equation? The roots, अब इसमें कैसा होगा? The roots may be real and distinct. ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. The roots may be real and distinct. The roots may be same. रूट्स क्या हो सकते हैं? इमेजिनरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो दो ही केसेस हम यहाँ पर कंसिडर. ये कब कंसिडर किया था हमने कंसिडर किया था कहाँ पर? डिफरेंशियल इक्वेशन में, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में. Here we are going to consider that root will be real and distinct and same. Now how we are going to write it down? So CF equal to, if roots are real and distinct m1 and m2, then CF would be equal to f1 of y plus m1x plus f2 y plus m2x. अब ये ऐसा क्यों लिखा? Because we are going to express z in terms of y plus m1x, जो भी होगा y plus mx लिखते थे ना हम, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कंसिडर करेंगे. तो f2 of y plus m2x. अगर रूट्स सेम निकले तो जैसा हम पहले लिखा करते थे उसी कॉन्टेक्स्ट में f1 of y plus mx प्लस x इंटू f2 of y plus mx या f1 plus x f2 y plus mx. इतना ही सिंपल, इतना ही लिखेंगे. और फिर अब देखेंगे कि रूल्स फॉर फाइंडिंग, ये बात याद रखो, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जो भी किसका इमेजिनरी रूट्स वाला पार्ट हम यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं आएगा. बाद में बता दूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा. फिलहाल के लिए तो इतना समझ के चलिए. नाउ इतना क्लियर हो जाने के बाद we are going to move forward. What that forwarding will help us? We are going to find out the PI, particular integral. अब how that particular integral will be? तो टाइप 1 सेम पिछले बार जैसा है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछला क्या था? 1 अपॉन एफ ऑफ डी था. अब ये d के साथ क्या आया? d डैश एक्स्ट्रा आया, d के साथ d डैश आ गया. इतना ही समझे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? d के साथ क्या आ गया? d डैश आ गया. इतना ही है. बाकी पूरा प्रॉब्लम पिछले बार जैसा ही, सिस्टम पिछले बार जैसी ही, उसको सॉल्व करेंगे पिछले बार जैसा. ये क्लियर करो. So which is, that means, so the first type will be f of xy equal to e का पावर ax plus by. पिछली सिस्टम ही क्या करेंगे? जहां जहां d वहां वहां a, जहां जहां d डैश वहां वहां b, और हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व. जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं. ठीक है, अब जहां जहां d वहां वहां a, जहां जहां d डैश वहां वहां b. सेकंड, अब टाइप 2 क्या होगी? व्हेन f of xy equal to sin ax plus by cos ax plus by, whatever it may be, then f of then 1 upon d square comma d dash comma d dash का स्क्वायर. अब ये व्हाट दिस इज d, ये यहाँ पर एक चीज हो गई, कॉमा चाहिए था बच्चों, ये थोड़ा सा मिस हो गया. यहाँ पर कॉमा चाहिए था, याद रखिएगा, मेंशन कर लीजिए, वरना आप अगर लिख रहे होंगे इसके साथ साइमल्टेनियसली तो वहां पर कॉमा दे दीजिए. सो ये इक्वेशन होमोजीनियस है. इक्वेशन होमोजीनियस है, जरा पिछली स्लाइड पे चले जाऊं. इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसकी एडिशन n, इन दोनों की एडिशन n, इसकी एडिशन n, यानी हर एक की पावर की एडिशन n होती जाएगी. सो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम साइन एंड कॉस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सीधा सीधा d की जगह a और d डैश की जगह b सब्स्टिट्यूट कर रहे थे पिछले केस में, वो केस यहाँ पर स्टैंड नहीं होगी. अब सिंस होमोजीनियस इक्वेशन, इसलिए अगर मैं सेकंड ऑर्डर देख रहा हूँ उसके लिए, तो ये इक्वेशन डी स्क्वेयर डी डैश और डी डैश का स्क्वायर इसी फॉर्मेट में होगा. अगर ये इस फॉर्मेट में होगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट? We are going to substitute d square equal to minus a square, पिछले बार जैसा ही.
डी डी डैश इक्वल टू माइनस ए बी and d dash का square equal to minus b square. Substituting that values in the given equation, whatever the solution will be, that will be solution. जो भी solution आएगा वो solution होगा. ठीक है. Next, f of x y, x का power m, y का power m. अब simultaneously x का power m and y का power m. अब pi equal to 1 upon f d d dash, x का power m, y का power n. क्या किया, ऊपर लेके गए उसको एज यूजुअल जैसा प्रीवियस इसमें लेके जाते थे, x का पावर m, y का पावर n, उसको एक्सपांड किया. अब एक्सपांड करने के बाद कैसा एक्सपांड होगा उसका, वो जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं उस केस में आपको ये क्या करूंगा, ये एक्सपांशन उस वक्त पर एक्सप्लेन करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम. ठीक है. चौथी केस, व्हेन एनी फंक्शन f of x y, जब ऐसा कुछ भी हो तब हम उसको कैसा कंसीडर करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करेंगे. ये यानी एनी केस मतलब क्या, ये हमारी जनरल मेथड है जिसको हम पहले सॉल्व किया करते थे. ये हमारी कौन सी मेथड है, जनरल मेथड है. अंडरस्टूड. ठीक है. तो अब साइमल्टेनियसली उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. हाँ, एक बात बताना भूल गया, सी एफ प्लस पी आई, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. जैसे पहले हम z इक्वल y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखते थे, अब z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे. चलो आगे जा रहा हूं. पहले सी एफ देखेंगे, डी क्यूब प्लस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 3d डैश का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन z इक्वल टू 0. अब दिस इज इक्वेशन ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है. और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन वंस इट इज देयर, हम सीधा सीधा इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हम देखते थे. पुट d इक्वल टू m and d dash equal to 1. Substituting the given values, we get m cube minus 4m square plus 3m. m cube minus 4m square plus 3m equal to 0. m in bracket देखोगे जरा सा तो क्या मिला, m square minus 4m plus 3. इसके रूट आते हैं, इसके लिए 0, इसके लिए आया 1 3. यानी रूट क्या मिला, 0 1 and 3. All roots are distinct. All roots are distinct. So the solution will be f1 of y plus 0x y plus f2 of y plus 1x, इसलिए fy plus x plus f3 of y plus 3x, ये 3 इसलिए, यानी ये 1 यहाँ पे आया बच्चों, 3 यहाँ पे आया और ये 0 इसके साथ चला गया. क्लियर हुआ. अब ये नया इक्वेशन d2z by dx स्क्वायर माइनस 4 इंटू d2z by dx से dy प्लस 4 इंटू d2z by dy स्क्वायर. यानी ये इक्वेशन क्या है, d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर. पुट d इक्वल टू m, d डैश इक्वल टू 1. सब्स्टिट्यूट करने के बाद द इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4. That means n minus 2 का whole square equal to 0. That means m equal to 2, 2. That means हाँ, ये crystal clear है कि ये RHS 0 है तो सिर्फ और सिर्फ auxiliary equation का है. So the required solution is z equal to, दो रूट्स मिले इसलिए, दो रूट्स सेम मिले इसलिए f1 y plus 2x plus x into f2 of y plus 2x. अदरवाइज इसको कॉमन निकालो, f1 प्लस एक्स f2 दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2x. क्लियर हुआ इतना, f1 प्लस एक्स f2 y प्लस 2x. अब चलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के पास, और जो पहली मेथड हमें दी गई थी वो पहली मेथड अभी हम फिर से देखेंगे. क्या है, जब भी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी होमोजेनियस हमें दिया जाएगा, हम और वो भी RHS में उसकी दी हुई वैल्यू e to the power ax plus by इस फॉर्मेट में होगी, देन
just the thing that we are going to do is substituting d equal to capital A, small a, substituting d dash equal to b, यानी a की जगह यानी कैपिटल डी की जगह ए और कैपिटल डी डैश की जगह बी। फिनिश, फिनिश, इतना ही हमें देखना है। चलो अब नेक्स्ट मूव में फॉरवर्ड। सबसे पहले ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, कौन सा, d3z डाबा 3z अपॉन डाबा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू डाबा 3z डाबा एक्स स्क्वायर डाबा वाई प्लस 4 इंटू डाबा 3z डाबा वाई क्यूब इक्वल टू e का पावर x प्लस 2y। दैट मीन्स दिस इज a, दिस इज b, यानी 1 एंड 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। सब्स्टिट्यूटिंग डाबा बाय डाबा एक्स, बच्चों ये d नहीं है ना, ये डाबा है, ऐसा पार्शियल वाला, क्लियर कर लेना इसको। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग डाबा बाय डाबा एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एंड डाबा बाय डाबा वाई इक्वल टू कैपिटल डी डैश, वी गेट क्या मिलेगा, डी क्यूब इसकी जगह पे 3 इंटू 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, यानी ये डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 इंटू डी डैश का क्यूब इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस 2y। अब इसका CF फाइंड आउट करना है, तो फॉर CF कंसिडर दिस टू बी इक्वल टू 0, इसको 0 कंसिडर करो, यानी डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश का क्यूब ऑपरेटिंग ऑन z इक्वल टू 0, बट z कैन नॉट बी 0, प्रीवियस सिस्टम के अनुसार z 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या ब्रैकेट 0 होगा, मतलब डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d क्यूब इक्वल टू 0। Put d capital D equal to m and capital D dash equal to 1. That means the given equation would be m cube minus 3m square plus 1 equal to 0. इसको ध्यान देना, plus 4 equal to 0. अब now if this is the case we can do, हम इसको solve करेंगे तो हमें इसके रूट मिलेंगे। अब हमें ऐसा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंथेटिक डिवीजन से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ ये चीज, तो इसको जरा ध्यान से देखना। सिंथेटिक डिवीजन मतलब 1 माइनस 3 0 एंड ये 4। अब ये 0 किसके लिए आया बच्चों, ये 0 ये यम था ना, उसके लिए आया। अब जस्ट पुट x यम इक्वल टू माइनस 1, 1 के लिए 1 एज इट इज, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 4 एडिशन आ गई, माइनस 4 इंटू माइनस 1 4 एडिशन 4 आ गई, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 0, ये हो गया खत्म पूरा, यानी अब ये आया 1 माइनस 4 यम स्क्वायर माइनस 4 यम प्लस 4, ये तो 2 है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट निकलेंगे 2 2, यानी कुल मिलाकर कितने रूट निकले, रूट निकले माइनस 1 2 एंड 2। ये इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये है 1 किसका कोएफिशिएंट, यम क्यूब का कोएफिशिएंट, माइनस 3 किसका कोएफिशिएंट, यम स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 0 किसका कोएफिशिएंट, जो यम एब्सेंट है उसका कोएफिशिएंट, 4 किसका कोएफिशिएंट, कांस्टेंट जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट। टोटल रूट्स मिले 1 माइनस 1 2 2। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो इक्वेशन होगा CF इक्वल टू F1 इन ब्रैकेट y माइनस एक्स प्लस F2 इन ब्रैकेट y प्लस 2x, इसके लिए प्लस x इंटू F3 y प्लस 2x। इसको हम अलग तरीके से और लिख सकते हैं, F1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस F2 प्लस x F3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2x कॉमन, यानी मैं y प्लस 2x यहाँ से और यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। इतना है। अब इतना होने के बाद जरा देखो ध्यान से क्या किया, अब टू फाइंड पी आई। अब पी आई फाइंड करना है तो फिर से इक्वेशन लिखा पी आई का, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी क्यूब
डी डैश का क्यूब ऑपरेटिंग ऑन ई का पावर एक्स प्लस 2y। जहां जहां डी वहां वहां 1 पुट करो और जहां जहां डी डैश वहां वहां 2 पुट करो। क्या मिला? 1/1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू डी स्क्वायर 1 डी डैश 2 माइनस 6 प्लस 4 इंटू डी डैश यानी 2 का क्यूब यानी कितना 8 8 इंटू 4 32 यानी फाइनल आंसर बना 1 माइनस 6 प्लस 32 27। अब यानी फाइनल आंसर ये हुआ y इक्वल टू ये सी एफ प्लस ये पी आई। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हो गया। नेक्स्ट इसमें ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको पूरे को। तो रिक्वेस्ट ये है कि प्रीवियस हिस्ट्री पे प्लॉज करके ये सिंथेटिक डिवीजन कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब ये सेम है, अब सेम सिस्टम है। अब ये सेम सिस्टम है तो अब हम इसको कैसा लिखेंगे? ये इक्वेशन दिया कैसा है? आर है, एक्स है, टी है। अब ये आर एक्स टी, ये एक्स है नहीं, बेसिकली ये यस है, आर एस टी। अब ये आर एस टी क्या है बच्चों? कुछ याद आ रहा है? आर एस टी क्या है? गलती से वो यक्स हो गया है ना, इसको यस कर लेना। यस, ये मैंने यस अलग वे से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको 5 और यस में कंफ्यूजन ना हो। अब ये आर क्या है? आर मतलब दूसरा कुछ नहीं, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और यस मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एक्स एंड वाई। यानी ये डैबा टू जेड अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर है, ये डैबा टू जेड डैबा एक्स डैबा वाई है, ये डैबा टू जेड बाय डैबा वाई स्क्वायर। इसका मतलब अब मैं रैंडमली बोलूं तो ये डी है, ये डी भी है, ये डी डैश भी है, ये सिर्फ और सिर्फ डी डैश है। आर है इसलिए डी डैश का डी का स्क्वायर और डी डैश का भी स्क्वायर, यानी 2 बार। अंडरस्टूड? यानी इसकी भी डिग्री 2, 1 प्लस 1 2 और ये 2। यानी अब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी, ध्यान से देखना आर एस टी दिया है इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। गिवन इक्वेशन वुड बी r minus 4s plus 4t equal to e का power 2x plus y. The given equation can be written as d square minus 4d d dash plus 4d dash का square equal to e का power 2x plus y. अब इतना क्लियर हो जाने के बाद इसका CF फाइंड आउट करना है। CF फाइंड आउट करने के लिए let us consider that the RHS is equal to 0. Therefore d square minus 4d d dash plus 4d dash का square equal to 0. Operating on z equal to 0. But z cannot be equal to 0. Therefore that bracket is going to get 0. That means d square minus 4d d dash plus 4 is equal to 0. D dash का square equal to 0. Substitute d equal to m, d dash equal to 1. The given equation would be d square minus 4m m square minus 4m plus 1। यानी ये पुट करने के बाद what I am saying, ये पुट करने के बाद the equation would be m square minus 4m plus 4 crystal clear root 2 अभी निकाले थे। So the CF will be f1 plus x into f2 इन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में f1 plus x into f2, ब्रैकेट के बाहर y प्लस, ब्रैकेट के बाहर दूसरे ब्रैकेट में y plus 2x, y plus 2x। अब to find out the particular integral, how we are going to find out the particular integral? अब particular integral उसका कैसे find out करेंगे?
अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद सीधा सीधा गिवन डिफरेंशियल पी आई इक्वल टू 1 अपॉन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटिंग अपॉन ई का पावर एक्स प्लस टू वाई पुट करो एक्स प्लस टू वाई यानी क्या हो जाएगा देखो जरा ध्यान से एक्स प्लस टू वाई पुट करने के बाद क्या हो जाएगा अब एक बार वो एक्स प्लस टू वाई पुट करने के बाद वो हो गया जीरो देखो देखो ध्यान से देखो चेक कर लो ये क्या हो गया जीरो हो गया देखो अब एक बार आप d की जगह 2 पुट कर दिया और d डैश की जगह 1 पुट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा d की जगह 2 पुट करोगे d डैश की जगह 1 पुट करोगे तो ये होगा 4 8 कौन सा 8 -8 और ये 4 आंसर 0 यानी आ गया 0। अब ऐसे केस में कैसे उसको डील करें मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना ऐसे केस में उसको कैसे डील करें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसकी वजह से वो इक्वेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए कौन सा दिया हुआ इक्वेशन जीरो हो जाए तब हमेशा उस इक्वेशन को जीरो बनाने वाली जो चीज है उसको हमें राइट ऑफ द टाइम उसको क्या करना है सॉल्व करना है क्लियर हुआ उसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है उसको हमें नलीफाई करना है किसको नलीफाई करना है इस सिस्टम को हमें नलीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके दो फैक्टर्स रखेंगे इसके दो फैक्टर्स लिखेंगे कौन से डी डी डैश टू डी डैश डी माइनस टू डी डैश ऑपरेटिंग ऑन ई का पावर टू एक्स प्लस वाई अब ये ई का पावर टू एक्स प्लस वाई ये जीरो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है माइंड माई वर्ड ये जीरो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब भी हम इसको y की जगह पुट अप करेंगे 1 तो ये पूरा इसको 0 तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं लेट अस कंसीडर 1 अपॉन क्लियर कर रहा हूँ बच्चों इसको सब हाँ लेट अस कंसीडर 1 अपॉन डी माइनस टू डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ अब ये व्हाट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ मैं सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ अब this is we are going to integrate that means integration how we are going to write down अब ये चीज जो है यहाँ पर ये हम ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेशन ई का पावर 2x प्लस सी माइनस टू एक्स अब ये सी माइनस टू एक्स को जिसने उसको जीरो बनाया मैं उसी को नलीफाई कर रहा हूँ समझे जिसने उसको जीरो बनाया मैं उसी को नलीफाई कर रहा हूँ दैट मीन्स दैट 2 माइनस टू एक्स विल गेट कैंसल ई का पावर सी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट 1 डी एक्स यानी एक्स इंटू ई का पावर सी इंटू एक्स इंटू ये हो गया अब वंस दिस इज दिस अब मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि आ गया ये एक्स तो अब क्या करूं अब मेरे पास और एक लॉजिक है इसको सॉल्व करने का क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना प्रोवाइडेड दैट ये सी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है पुट देखो इसको सी कंसिडर करो क्लियर बोल रहा हूँ जरा ध्यान से देखना मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू सी समझे नाउ y कैन बी रिटर्न एज ध्यान से देखना c माइनस टू एक्स इतना क्लियर होने के बाद आई एम सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y हियर मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं अब यानी 1 अपॉन डी माइनस टू डी डैश इक्वल टू ई का पावर 2x प्लस c माइनस टू एक्स अब what is this is nothing but the integration so I'm just considering integration e का पावर 2x plus c into e का पावर c minus 2x c minus 2x अब once this is clear why for because it is going to get 0 इसकी वजह से 0 हो रहा है तो I'm just using this substitution 1 upon d minus 2d dash e integration e का पावर c यानी 2x will get cancel e का पावर c into dx 1 माइनस डी माइनस टू डी डैश ई का पावर माइनस ई का पावर सी बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 मतलब आया x। अब एक बार ये x आया तो वापस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 2x प्लस वाई। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c, क्लियर कर रहा हूं बच्चों, पीछे लेके उसको फिर से एक बार क्या कर लेना, सॉल्व करना। 2x प्लस वाई। अब 1 माइनस 2, 1 अपॉन d माइनस 2 d डैश ऑपरेटिंग ऑन e का पावर 2x प्लस वाई इंटू x। अब ये x आ गया। अब 1 सिटीज x आ गया, इसको मुझे फिर से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। कौन से बेसिस पे लिया बच्चों, ध्यान से देखो। ये जनरल मेथड है, जिस जनरल मेथड की मैं बात कर रहा था। तो pi इज नथिंग बट, ऐसा अगर हो तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं। समझ में आया? where c is replaced by y plus mx आफ्टर इंटीग्रेशन। यानी जब ऐसी कुछ चीज हो जनरल इंटीग्रेशन से, तो मैं सीधा सीधा x प्लस सी माइनस एम एक्स लिख सकता हूं। वही चीज का उपयोग यूज हमने कहां पर किया, यहां पर किया। और एक मिनट, यहां पर मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, और जहां जहां y था वहां वहां c माइनस एक्स लिखा। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मैं यहां पर भी वही कर रहा हूं। मैं इसको क्या नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता, ये अगेन जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पे इंटीग्रेशन लिखा, और जहां जहां y है वहां पे क्या लिखा, c माइनस एक्स लिखा। अब ये क्या हो गया, e का पावर c आ गया, कांस्टेंट है, और बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, यानी e का पावर 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाय 2, cf प्लस pn। दिस इज द केस। अंडरस्टूड? दिस इज द केस। मैं यहीं पर आज के लिए रुकता हूं, और कल के क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, थैंक्स।